Working with words. Here are some similes that you are familiar with. Can you complete them? Students, you can see these are some similes like as white as snow. Do you know what is a simile? Students, when we compare a thing to another object, it is called simile. First one is as white as snow, as clear as sky, as sound as bell, as dark as night, as bright as sun, as soft as cotton, as sharp as knife, as poor as donkey, as strong as bull, as quick as rabbit, as smooth as butter, as straight as arrow. Here are some definitions. Copy these terms into your notebook and write a definition for each. First is astronaut. Who is astronaut? A person trained to participate in the flight of a spacecraft. Next is satellite. A body in the sky that orbits a planet. C has space shuttle, a spacecraft. D, launchpad, a platform from which a spacecraft or a rocket is launched. E है rocket, a device or vehicle designed for space travel. Okay, next question is copy the words given in column A below into your notebook. Think about the correct meaning. If in doubt, look in a dictionary, find the correct meaning in column B and match it with word in column A. So students, here are two columns, column A and column B, and we have written the correct answer before column A. So the correct answers are in front of column A. First one is accelerate. So its answer is speed up. Next is gravity, the force that pulls all objects to the center of the earth. Okay, next is apogee, an electrical device that ignites the combustion of the propellant. Next is igniter, an electrical device that ignites the combustion of the propellant in a model rocket engine. Decelerate, slow down, launch, the lift off of model rocket following the ignition of the engine. Decelerate, slow down, launch, the lift off of model rocket following the ignition of the engine. Propellant, a mixture of fuel and an oxidizer which is the source of motive energy in a rocket. Next is drag, the force that resists the forward motion of an object as it moves through the air. Last one is thrust, the force that makes the rocket accelerate upwards as the propellant is burning. Students, ये word force है, F-O-R-C-E, force. Learning about language. Next is pronouns. Do you know what is a pronoun? Pronoun is a word that can be used at the place of noun, like he, she, it, I, we, they. Got it, students? Okay, do you remember reading about pronouns earlier? In each of the following sentences, a pronoun has been misused.
Underline all the pronouns and then rewrite the sentences. Correct the mistakes. Students, pronouns का एक कॉलम मैंने आपको करवाया था जिसमें सबसे पहले इसकी होती है सब्जेक्टिव केस, देन इसका पोजेसिव केस होता है और फिर एंड पे इसका होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर तो ये शुरू में आएगा तो हम इसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे, सेंटर में आएगा अगर इसको पोजेस शो करेगा तो पोजेसिव केस राइट करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट शो करना होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस इसका यहाँ पे राइट करेंगे। तो मिस्टेक को देख के उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट है द टीचर एंड मी क्लियर द क्लासरूम। टीचर एंड मी यहाँ पे यूज हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका एज अ सब्जेक्ट हम लिखेंगे आई। द टीचर एंड आई क्लियर द क्लासरूम। हिम एंड हिज डॉग प्लेड इन द पार्क। हिम जो है यहाँ पे स्टार्ट में आए तो एज अ सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव है तो इसकी सब्जेक्टिव केस होगी ही एंड अब यहाँ पे डॉग है तो डॉग पोजेस कर रहा है तो यहाँ पे पोजेसिव केस इसका हीज आएगा। ही एंड हिज डॉग प्लेड इन द पार्क। नेक्स्ट इज द फाइट वॉज बिटवीन देम एंड वी। अब एज अ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आया तो वी की जगह पे अस यूज होगा। द फाइट वॉज बिटवीन देम एंड अस। आफ्टर दे केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्सबैक। आफ्टर दे, यहाँ पे दे नहीं आएगा, ये यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका देम होगा। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्सबैक। मी एंड द अदर बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अब मी देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट पे आ रहा है तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। आई एंड द अदर बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। शी एंड हर फ्रेंड्स हैव टू बी एज केयरफुल एज वी। वी लास्ट पे है तो इसका ये सब्जेक्टिव केस है लेकिन यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि ये लास्ट पे है तो यहाँ पे राइट होगा अस। शी एंड हर फ्रेंड्स हैव टू बी एज केयरफुल एज अस। इट वॉज मी हु केम फर्स्ट। एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। इट वॉज आई हु केम फर्स्ट। ऑल अस चिल्ड्रन आर ईगर टू प्ले आउटसाइड। अस की हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। वी द चिल्ड्रन आर ऑल ईगर टू प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट है द हेड मास्टर गेव बाबर एंड आई अ स्कोल्डिंग। ऑब्जेक्टिव केस आई का है। मी द हेड मास्टर गेव बाबर एंड मी अ स्कोल्डिंग। लेट ही एंड आई डू द वर्क टुमारो। लेट हिम, लेट के साथ हिम यहाँ पे आएगा। लेट हिम एंड मी डू द वर्क टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका। वन ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम मूनविंड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर्स। सी द बॉक्स बिलो। मेक वर्ड्स फ्रॉम दीज लेटर्स। जो हमारा मून विंड था उसमें लेटर्स थे टोटल 9। तो अब ये बॉक्स है, इसमें कुछ लेटर्स है। यूज ईच लेटर ओनली वंस, नो प्लूरल्स, नो 1, 2 और 3 लेटर वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जिनको आपने यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड मैं आपके सामने बनाती हूँ FOLD, फोल्ड। तो ये वर्ड बना फोल्ड। इस तरह NOSE, नोज। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको रिपीट नहीं कर सकते। आप एक लेटर को रिपीट नहीं करना, ना उसको एज अ प्लूरल यूज करना है। तो अगर आप 20 वर्ड्स बनाते हैं, स्कोर आपके सामने है, तो उसमें कमेंट्स में आपको मिलेगा फेयर। अगर आप 28 वर्ड्स बनाते हो तो आपके कमेंट्स आ जाते हैं गुड। 35 बनाते हो तो आपको एक्सीलेंट आपके कमेंट्स में आएगा और 40 बनाते हैं तो फिर आप माइंड ब्लोइंग होंगे।